جہاں پہ جج ہی نہیں آزاد ہے، باقی عوام تو قوم تو بڑی دور کی بات ہے۔ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا نا وہ معاشرہ ہمیشہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اس جدوجہد کا شکار ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں عدل ہی نہیں ہے، جسٹس ہی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ آپ دھکے کھا رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ مقروض در مقروض اور ہماری نسلیں بھی مقروض در مقروض ہو رہی ہیں۔ آئیے بندہ جو ہے ملک اوپر نہیں جانے والا تھا، اس کی سوچ یہ تھی کہ میں چائنا بنا، وہ خود بھی چائنی گورنمنٹ کی بھی تھا۔ ایک دفعہ شیخ رشید نے کہا خان صاحب وہ میں تو اتنی حکومتوں میں رہا ہوں، تو آپ کیبنٹ کی میٹنگ کال کرتی ہیں تو 5-5 گھنٹے آپ میٹنگ لیتے ہیں، تو آپ گزارا وہ تو ہمیں کھانے کھلاتے تھے عوام کے گورنمنٹ کے پیسوں میں، آپ تو چائے پلا دیا کریں۔ پھر اس نے کہا کھانے کا بھی چائے اور بسکٹ نا میری پاکٹ سے یہ ہے۔ اب لیکن مرنے مجاہد مرنے مومن کو یہ رہنے نہیں دیتے، جو مطلب اوپر سے جانے وزیر رکھتا تھا جو سابق طلاق اس نے بنایا امریکہ نے کہا کہ اب اس کو بھی ساتھ امریکہ سارے شام ہم امریکہ کے بہتری ہیں، امریکہ کے بہتری وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ پولیٹیکل اسٹرانگ ہو۔ اگر آپ سیاسی اسٹرانگ ہو گے تو آپ تو فائنینشلی ہو جاؤ گے، معاشی ہو جاؤ گے، تو اس کے بارے سے باہر ہے کہ آپ ایسے کرنا چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں یہ کشکول دے کے پھرتے رہے، ہم آئی ایم ایف ان کا آئی ایم ایف ہے، ہم ان پہ پابندیاں لگائیں، ان پہ قرضہ دیں، ان کو چکما دیں، ان کو یوز کریں، ان کو یوز کریں۔ اب یہ یوز نہیں ہو رہا، ہمارا حق بنتا تھا کہ ایران کا ساتھ دیں، لیکن آپ لیتے نہیں ہیں اس کے امریکہ کے اور دوسری اسرائیل امریکہ کی آج مسلمان اس وجہ سے زیادہ بینک نہیں رہتے جگہ سود والے اور اسرائیل کے اب دیکھو مسلمان اس پر کہ ابو ظبی دبئی شارجہ قطر کو کیا ضرورت تھی اڈے دینے، یہ ایران کا ساتھ دیتے، ایران کو قرضہ دیتے تو ایران ایک طاقت بن جاتا مسلمانوں میں، اور امریکہ کی ضرورت بھی تھی ان کی طرف دیکھ جاتا۔ کام یہ آپ اس میں اکٹھے نہیں ہوتے، دو ایک نہیں ہوتے، بس یہ بات ہے۔ بات ہے نا جی ہم شعور نہیں رکھتے، ہم اصل میں نا ہے تو بیسیکلی نا ہم بہتری ہیں، بہتری بس ایک ملک چائنا نے کہا اس کا سپورٹ کیا، اب وہ غیر مسلم ہے، چائنا اور رشیا وہ کہہ رہا ہے اس کو بھڑکاؤ، اس کی بدماشی نکالو، مال ہم دیں گے آپ کو، دیکھو پر پھینکنے کے لیے آپ وہ چھوڑے جنوبی کوریا، وہ شمالی کوریا کے جنوبی کوریا وہ ببلو جو ہے اس نے کہا میں دوں گا بھڑکاؤ، وہ لڑکا تھا جو ہے بڑا بہادر تھا جی وہ بڑا مجاہد ہے یار، بڑا مجاہد ہے، ہم تو آزاد ہیں۔ وہ لڑکا یا دیکھ لو انہاں دی حکومت ہے، انہاں کدی نہ الیکشن نہ کچھ نہیں، ایک حکومت چل رہی ہوئی انٹر چل رہی آپ جڑا ایران دا صدر سی انہوں نے 33 سال کی نعمت 33 سال حکومت کی یہاں پہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے حکومت آپ کی 5 سال نکالنے نہیں دے، یہ اسٹیبل نہ ہو جائے پولیٹیکل، آپ پولیٹیکل اسٹیبل ہو گئے تو معاشی طور پہ آپ اکانومیکلی آپ اسٹیبل ہو جائے، معاشیات کا تعلق سیاسیات دیتے ہیں، سیاسی طور پہ اسٹرانگ ہو گیا، آپ کی پالیسیاں ہوں گی، پالیسیوں پہ امپلیمنٹیشن ہو گیا، پاکستان کے اندر کام شروع ہو جائے گا، یعنی پاکستان کی بہتری کے لیے تو پاکستان اوپر نکل جائے گا، لیکن وہ بارے سے ہی ہوا ہے۔ دوسرے نے کام دینا
you are seem to be some much worried. तो आप परेशान बहुत होते हो. कुछ लोग अगर कहें कि यार मैं आई एम above than 60, तो आप you are in doubt कि either he is 60 or not. आप उसके लिए फिर भी परेशान सोचते हो ये क्या वजह ये है ना, why it is so, why it is so, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना कुछ होते हैं, मसला बन जाता है कभी कभार, लेकिन अगर आज छोड़ दिए ना, वो एक मसले छोड़ा दूसरे पास कर कहते भाई उसने छोड़ा आप तो पूछ रहे, ये नहीं कहते चलो एक बार छोड़ा चलो ठीक है बात खत्म वो करो. हवाला देगा, हाँ जी, अगर हवाला देके वो फंसाएगा हवाला आगे फैलता जाएगा. ऐसे, इसलिए अच्छा है वो जो एक जंगल में आग की तरह वो फिर पूछेंगे हाँ भी किसने छोड़ा था, आप छोड़ते हो बंदे छोड़ते हो. ये बात ना यहाँ पे किसी को थोड़ा बहुत लीव दिया जाए ना, वो अपने हद तक नहीं रखेगा, वो आगे बुलाएगा फलाने बंदे को पता चलाएगा. है भाई मना कर दे भाई, एक दफा हो गया ना तुम्हारे साथ किया बस चुप कर, जो नहीं करता भाई वो करता शाबाशी लेने के लिए आके बुलाता है, इसलिए वो जिसका होता है वो भी अल्लाह कहता जी हमसे भी ये 20 रुपीज ले लेते कोई चक्कर नहीं, बट 20 रुपीज की हैसियत क्या है? आप देखो तो जी 20 रुपीज में सारा बोझ ही आप आवाम पे है, आपका आपकी सैलरी की मेंटेनेंस ड्राइवरों पे सारा आवाम पे बोझ आ गया. लेडीज को भी छोड़ना चाहिए था 20 रुपए नहीं, इनका तो लग जाना है, लगने वाला अगले बार. अच्छा अनकरीब है 5 साल में सबका किराया लगेगा, लगना चाहिए. अलबत्ता मैंने कहा बुजुर्ग भी नहीं शायद रहेंगे, सबका अलबत्ता जो फॉरेन कंट्रीज में है ना वो सिर्फ अबव देन 60 प्लस अबव देन. वहाँ पे ना अगर आप जॉबियत भी नहीं हो, आपने कोई जॉब नहीं, आप 60 को टच कर गए ना तो सारे आप गवर्नमेंट खाते में पड़ गए. आपको ना स्टाइपेंड रीजनेबल हैंडसम अमाउंट आपको घर पे बैठे बिठाया है, आपकी मेडिसिन मेडिकल यदि आपको वो बंदा वहाँ के साथ अटेंडेंट जो है ना वो डिप्यूट करते हैं कि अगर ये दिन जो उसको साथ ले जाए मेडिसिन फ्री हर चीज़ है. मेरी जब शीरा रहता भी है ना न्यूयॉर्क में तो वो ये कहती है कि वहाँ पे जो भी जॉब की है या तो जॉब वालों से ये चीज़ है. आप इमेजिन नहीं कर सकते 25 से 30 लाख की तरफ जो नुकसान है और मंथली जो नुकसान हो रहा है ये 2 दिसंबर 2026 के साथ क्या मान है. अब ये तो नहीं ना 30 साल सर्विस करो तो एंड पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा निकाला कि आपकी पेंशन जो है 40% कट गई, कंपोजिशन कट गई, आपकी नींद में अटैचमेंट जीरो हो गई. ये कहाँ का सूद है? अब तो बड़ा कुछ ये कहाँ का करोड़ है? नहीं करी थी, लेकिन जो ऑलरेडी जॉबियन है और रेगुलर है और उनकी 30 साल और वो नियर टू रिटायरमेंट है, उनके को तो मंजूर है. हमें क्या एग्रीमेंट के तहत हमने जॉब की कि हमें 65-25 से कि हमें पेंशन मिलेगी, 65-25 की रेशियो से हमें कमोडिशन मिलेगी. अब मेरा तकरीबन 12 लाख मेरा सेविंग अटैचमेंट कर दिया सिफर हो गया, मेरी कमोडिशन तकरीबन 13 लाख से ऊपर चली गई है जी. सिर्फ 22 लाख 21,000 16 स्केल मेरे 15-16 साल मेरे को 16 स्केल है. 93,900 610 में मैं बेसिक पे रिटायर हुआ. मेरी एंड पे बेसिक ये थी तो उसका पैंठ कच्ची निकाले. फिर जो पेंशन बनी है वो पेंशन 40% कट कर दी गई. 70 के बाद मेरी पेंशन बनती थी जो 56,517 पेंशन मुझे दी. कहाँ का सूद है, कहाँ का कोई है कानून? फिर एक और है, एक और भी जुल्मी अजीब है कि जो मेरी पेंशन बनी है, जो मेरी वहाँ पे 2 मेडिकल होते हैं, एक बेसिक है, बेसिक मेरी सिर्फ 42,000 और सारी उम्र 43,000 है. जो साबका पेंशनर है 2 दिसंबर 2026 से पहले बना, उनकी जम हो गई है, जम हो के अगले साल बढ़ी, हमारी कोई जम नहीं है. अंदर तो बेसिक तो बुनियाद है. हाँ जी, उसके अंदर जम होती है. हाँ जी. तमाम मुलाजिम के पहले 2 दिसंबर से पहले तो मैं 31 मार्च को 4 मार्च की सजा दी है कि 4 माह आपने जॉब क्यों की. फिर पहले बता देते हम ना करते, रात के अंधेरे में ये नोटिफिकेशन जारी कर. ये बस बैठे तो जरूरत नहीं मैंने 60 साल ही करनी थी, हमें एडवांस ऑलरेडी कहा था भाई हम ये करने लगे. किसका दिल मानता है तो करे. अब रिटायरमेंट लेनी है ले लें, तो बहुत बेवकूफ है कोई जो इतना अपना नुकसान कर. कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, ये जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस. माइट इज राइट.
या बेसिक जो है ना जो अब तक हिसाब इसका बस यही है कि लोग जो इसका एंट्रेंस शौक आ जाए। अब आगे यूनिवर्सिटी वाली बात अब मेरी बात जॉब तो वैसे खत्म हो बंदा गई। जॉब ऐसे खत्म हुआ। हाँ जी। जॉब साल बंदा करता किस लिए था? हाँ जी। कि एंड पे पेंशन मिल पेंशन जाएगी मिल या जाएगी। ग्रेजुएटी मिल जाएगी, बच्चे की शादी कर लेंगे हाँ या जी। बेटी की शादी कर लेंगे या हज उम्रा कर लेंगे, अब ठीक कुछ है, भी नहीं तो है। या मकान बना लेंगे। अब क्या है जी? कुछ भी नहीं। आज ही तो होती है। अब क्या करोगे? हाँ जी। अब क्या करोगे? हाँ। कितना जुल्म है। फिर नेक्स्ट जो भी जॉब है और प्राइवेट करी जा रहे हैं, अदारे बेची जा रहे हैं, हाँ जी। और वो प्राइवेट 10-20 हज़ार 15 हज़ार वो तनख्वाह देगा, कोई उसकी पेंशन नहीं, कोई ग्रेजुएट नहीं। पेंशन पे वैसे ही उन्होंने खत्म कर दी है, ऑर्डिनेंस जारी करवा दी गवर्नर से। उसमें अजीब मतलब को जीरो पे ला के खड़ा कर दिया। इससे इतनी बढ़ेगी। ये बस से चलाने से ये भूख नहीं खत्म होती है जी। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें, इन बसों की दूर ना पड़े, बंदा अपना रेंट पे करके तो जाए। ये होगा या तक 20 रुपए छोड़ने से जो बंदा जो है वो उसके अंदर खुशहाली आ जाएगी। बहुत ही सही बात है। सारा काम असल में ये है ना जी कि अवाम तो लाई नहीं, तो वो आप गलती से तो वो अवाम से बदला ले रहे हैं। वो तो धक्के से उन्होंने को लाया भी है। वही तो उन्होंने कहा भी था कि मैं तुम्हारे की वजह से तो नहीं आई। हाँ जी, मैं साफ कर दिया था। नहीं तो है भी ऐसे सरकारी फॉर्म के तहत भी आप हदिया कीते हैं, रास्ता को छोड़ते हो, लिख दो, नहीं छोड़ता, चलो आप बाहर गए, आप मारे हैं, आप जीते। ये ये होता है हमारी जिंदगी में, ये पहली दफा होता रात को इलेक्शन के और था, दिन को रात सेंटर में गैप हो गया, सिक्योरिटी बड़ी गैप हो गई, दिन में पता चला सब कुछ उल्टा हो गया। है। यार जो रिटर्निंग ऑफिस का बना हुआ था हमारे पास, मेरी वहाँ पे ड्यूटी कॉलेज का ठीक है, तो हमने पहले भी बड़े इलेक्शन होता है, 60 साल की जॉब की है, तो इस दफा का वो अनोखा इलेक्शन था, उन्हें परवाह ही नहीं थी। ये परवाह के करते डब्बे डुब्बे उधर फेंक दो, ये थैला इधर फेंक दो। पहले होता था डब्बे लिखे जाते थे, उसका रिटर्न जो है वो लिखा जाता था, थैला उसका लिखा जाता था, ब्रेक वो एक तरतीब से लाइनें लगी होती है, उधर इधर फेंक दो, पता भी गोजा नंबरी करती है। तो वहाँ गोजा नंबरी सारे रिटर्निंग ऑफिस ही वो था बड़ा गर्ल कॉलेज, तो सारे वो ऐसे तरीके इंसाफ के जिनसे निशान भी छीना गया था, जय वो जीत गया, मैंने भी जीत गया, तो रात को वो आए, रात तो रात को आ गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आपने बख्तर पास गाड़ी में बैठना है या ये पब्लिक को लेके जाना है, जो बाहर खड़ी है। उन्होंने भाई पार्टी छोड़ ये दो, मुल्क है, जीतना तो पार्टी छोड़ दो ना, पार्टी नहीं छोड़ दो भाई। आर्मी का क्या काम कि आर्मी पार्टी वाली बनी, आर्मी कार्रवाई सब कुछ आर्मी नहीं, आर्मी का काम है सिर्फ सड़कों पे जाके मुल्क की हिफाजत करना। आई सब कुछ करवाई आर्मी से ही है, वो बनता है ना, ये तो कह रहे हैं कि ये हर लोग जो उनकी मानता है वो ठीक है बस। कितनी इज्जत के साथ खत्म करवा दी। जॉब ही है यार, जॉब करते हैं, पहले एक के मुलाजम है, आर्मी प्राइम मिनिस्टर के अंडर मुलाजम है, प्रेसिडेंट के अंदर मुलाजम है, प्राइम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बैठे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ला रहे हैं जल्दी, प्रेसिडेंट जल्दी ला रहे हैं, अदारों के चेयरमैन बने बैठे। देखो ना जी, एक बंदा हाजर ड्यूटी है, उसका तो बनता है कि वो चेयरमैन भी बन जाए। चलो रिटायरमेंट के बाद अगर आपने भी बदमाशी करनी है, धक्का लाना है, तो रिटायरमेंट के बाद हो जाए, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप हाजर सर्विस से आर्मी में आप उधर नाजरा के चेयरमैन बने बैठे, गौरदा के चेयरमैन डबल पे है ना, दिहाड़ी छुट्टी कमाई जाती कमा रहे हैं, ये अपना खुद ही शहीद करवाते हैं, इतने होते नहीं, इतने करवाते हैं। ऐसे ही है। जितने भी मुल्कों जब लगती है ना कोई हमला, वो वही कहते हैं ना, उन्हें पूछते हैं भाई हमला हो गया, पीछे फोन भेजो, तो कहते भाई कितने बंदे हो, तो कहना 10 है, उसमें बस 2 रह जाए ना, फिर बताना, फिर आएंगे, फिर दोबारा कर लेंगे। लड़के बैठा था भाई हमारे साथ ना काम करता है, उसने बताया था ना भाई तो क्या काल की क्या था भाई, जब 2 रह जाए तब बताना, उनका दोबारा काल की थोड़ी देर बाद उसने कहा हाँ जी कितने रह गए, मैंने भाई जी 8, मैं 2 बताया, मैंने हाँ नहीं अब जब 2 रह गए तब बताना हम आएंगे,
नहीं माने 2 दिन तक आगे नहीं माने, बाद में हमने कहा भाई 2 रह गए, 2 मिनट पहले सारे आ गए फोर्स, जब आके देखा सारे कोई नहीं मारा, सब जिंदा थे। सरमा फिक्रिया है उसको सरमा फिक्रिया है नौकरी से निकाल दिया नौकरी से बोलना निकाल देगा। वो कहता भाई मारने के खुद भेजते हैं, ऐसे ही है मदद करनी होगा तो 2 बंदे का तलब था। तो ये 9 मई वाला इन्होंने अगर सर्वस लोगों के जरिए करवाया तो दाल तरीके साथ बिल्कुल देखो ना जी आप 2 किलोमीटर तक जो है ना अपना आर्मी का वो कोर कमांडर आप 2 किलोमीटर तक उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी तक आप पानी इतनी सिक्योरिटी होती है तो घर भी खाली था घर को अंदर तोड़ फोड़ भी कर दी